आपने जैसे बताया आपकी जब जर्नी की मैं बात करूं, मेल डोमिनेटिंग फैमिलीज जहां ज्यादातर बॉयज को प्रायोरिटीज मिलती हैं, या इंडिया की जब मैं बात करूं, सो हाउ डिड enrolling into a convent school shape your early life? Thank you, Ji, for this such a lovely question, and it will impact lots of people. So the thing is, कि I was born in a Sikh family. So the Sikh family means कि that time girls were not sent to school. And in my family also, girls were not sent to school. Maximum girls were all at home learning to cook and make food and all that stuff. But that time my father shifted to Calcutta and he decided कि यहाँ पे तो सब लड़कियों को पढ़ाते हैं. How did you find the courage to take up the headmistress position in a difficult environment? What I will like to say is कि मैं जैसे वॉक से आई तो एक उस टाइम पे क्या होता था कि ये सब नहीं होते थे इंटरनेट वगैरह, तो वहां पे तब उस टाइम केबल वाले के थ्रू केबल लग के और नीचे ना एक स्क्रोलिंग, बस वो ज्यादा टाइम नहीं रहा, बस 2-3 साल में वो बदल गया फिर माहौल. लोकल एड्स. हाँ, उस टाइम की स्क्रोलिंग हो रही है. वांटेड हेडमिस्ट्रेस, कोई कह रहा प्रिंसिपल, कोई कह रहा हेडमिस्ट्रेस, कोई प्रिंसिपल है. अब देखो, मैं तो प्रिंसिपल अपने स्कूल में तो मैं खुद ही थी. पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज जिस भी स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, आप कनेक्टेड रहिए अपने बच्चों से, टीचर पे, प्रिंसिपल पे फेथ रखिए. Welcome to Yogiram Podcast. Today we have a very special guest, Indu Groverji. Induji's life story is a powerful journey of determination and reinvention, from breaking social norms in a male-dominated family to establish her own coaching and play school under challenging circumstances. After facing major setbacks, including the closure of her institute and professional challenges, she responded with courage and continued education, earning multiple qualifications even at the age of 62. Induji embodies the spirit of lifelong learning and self-belief, sharing profound insight on overcoming adversity, setting boundaries, and embracing new beginning with open wing and renewed confidence. Her story is a testament to the limitless possibility of growth and transformation at any stage of life. Very warm welcome, Indu ma'am. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. नमस्कार मैम, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आपने जैसे बताया आपकी जब जर्नी की मैं बात करूं, मेल डोमिनेटिंग फैमिलीज जहां ज्यादातर बॉयज को प्रायोरिटीज मिलती हैं, या इंडिया की जब मैं बात करूं, सो हाउ डिड enrolling into a convent school shape your early life? वो क्या दौर था, वो क्या समय था, वो क्या कठिनाइयां थी, एंड कैसे आप उसको ओवरकम किया? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. Thank you, Ji, for this such a lovely question, and it will impact lots of people. So the thing is कि I was born in a Sikh family. So the Sikh family means कि that time girls were not sent to school. And in my family also, girls were not sent to school. Maximum girls were all at home learning to cook and make food and all that stuff. But that time my father shifted to Calcutta and he decided कि यहाँ पे तो सब लड़कियों को पढ़ाते हैं. He went into the atmosphere जहाँ पे भी उन्होंने देखा भी हम तो पंजाब में इतने लिमिट करके बैठे हैं गर्ल्स को, तो ही थॉट कि मैं अपनी बेटी को भी, आई वॉज बोर्न आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज, तो आई वॉज वेरी पैम्पर्ड एंड केप्ट वेरी लवली वे. तो मुझे बोला, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वो एक अच्छे स्कूल में डालेंगे और जहाँ पे कि मुझे अच्छी एजुकेशन देंगे. और उन्होंने डाला भी कैलकाटा के बहुत बड़े स्कूल में, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट में, जेवियर्स में डाला. फिर उसके बाद जब उनकी ट्रांसफर फरीदाबाद हुई तो तब भी उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, बहुत ही अच्छे, जहाँ पे कि आज भी लोग पसंद करते हैं जाना, उसमें डाला. तो जितना भी मुझे वहां से गैदर करने को मिला, मैंने अपने तरह से किया, गैदर किया. तो बस दिस वाज थिंग कि हिज डिसीजन वाज अ वेरी गुड पार्ट फॉर मी. मेरे लिए बहुत मायने रखा उस डिसीजन ने, else I would have been there only. Great, great. In that aspect. Taking another step, another a big question, a tough one. At the age of 19, you choose to marry despite your husband's financial instability at that time. So, वो क्या आपको मोटिवेट किया टू मेक दैट डिसीजन? एंड ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम डिसीजन होता है, और इसके इफेक्ट्स आपको दोनों को, मैं जो दोनों पार्टनर्स की बात करें, सर की बात करें, आपकी बात करें, फैमिली की बात करें, उस पर इफेक्ट डालता है मेंटली एंड यस फाइनेंशियली तो होता ही है. सो मैम, उसके बारे में
प्लीज बताइए, डिटेल में बताइए। ऑब्वियसली वो तो है कि जब हम स्टैंड नहीं हुए और शादी का प्रेशर आ रहा है तो कैसे करेंगे। तो द थिंग वाज कि माय हस्बैंड प्रपोज्ड मी एंड ही वाज अ नाइस गाय। नाइस तो खैर देखिए कि when we got married I was 19 plus and he was 22 plus, so that was not a age to first of all कि get married। तो my friends तो till now say कि तू तो हट पीछे, तेरा तो बाल विवाह हुआ है, तू तो इस बारे में बात ही मत किया कर। तो आई एम नॉट अ कंट्रीब्यूशन पर्सन इन द सेम। तो चलो ठीक है। बट ये था कि प्रपोजल था मेरे को। मैं भी आज सोचती हूँ कि ही हैड प्रपोज वेरी अर्ली, मे बी समथिंग ही मस्ट हैव सीन इन मी। उनको लगा होगा कि कई बार कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, नहीं डिसाइड कर पाता। तो आई ऑल्सो टुक इट सीरियसली कि भाई ठीक है, उन्होंने अगर इतना बड़ा इमोशन मुझे शो किया है तो आई शुड वैल्यू। एंड द थिंग वाज कि पेरेंटल प्रेशर ये था कि कैसे करेगी, हर कोई अपनी, एक ही बेटी थी मैं, तो सोचा कि अच्छे से इसको अच्छे घर में जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, पहले कुछ बन जाए। तो बन जाने का बात तो ये था कि अगर टाइम दिया जाता तो शायद हम बन भी जाते, लेकिन टाइम ही नहीं दिया गया। उनकी फैमिली से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कर लिया, हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ो लिखो नौकरी करो। उन्होंने जैसे कैसे भी उस टाइम पर भी एयरफोर्स में एक क्लरिकल लेवल की नौकरी उनको मिल गई। दैट वाज गुड लक फॉर अस। नहीं मिलती तो प्राइवेट करते, जो भी करते। तो इधर से पेरेंटल प्रेशर था, भाई शादी कर ले, शादी कर, तू शादी में इसके साथ। तो इन स्पाइट ऑफ हिज एल्डर सिस्टर वाज आल्सो सिटिंग, तो फिर भी उन्होंने इस चीज को पीछे नहीं हटा कि ठीक है, कह दिया है, करनी है तो करनी ही है। कि वेंट थ्रू ऑल दैट थिंग्स आल्सो कि बड़ी बहन बैठी है, कहा भाई पहले करते हैं, छोटियों की भी करते हैं। तो वो ट्रॉमा भी उनके ऊपर प्रेशराइज, ही वाज वेरी प्रेशराइज्ड बिकॉज ऑफ दैट, बट स्टिल ही डिड नॉट, मतलब मेरे पेरेंट्स को उन्होंने डिनाई नहीं किया। और मेरा पार्ट ये था कि वो प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं कि शायद प्रेशर में आके वो छोड़ के चला जाएगा, तो मे बी भाई बच्ची बच जाएगी, कह लो, जैसे कि शब्द अगर आप पेरेंट्स के एंगल से लेते हैं। राइट बट राइट। डिड नॉट हैपन। आई ऑल्सो एग्रीड, ही ऑल्सो एग्रीड, तो ठीक है, अगर आपका डिसीजन है तो यही ठीक है, हमको मंजूर है। तो मंजूर में ये हुआ कि ही वॉज ओनली द अर्निंग मेंबर व्हेन आई गेट मैरिड। तो व्हाट आई विल डू विद हिम, बिकॉज कि मैं तो छोटी भी थी, और दूसरी चीज ये कि ब्रेक्स आए बीच में, मैं पंजाब चली गई, मुझे वहां से भी फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि मेरी स्टडी डिसकंटिन्यू, मतलब स्टडी मेरी जो एक हिंड्रेंस भगवान जी ने उनके ऊपर एक ऐसा रखा मेरे ऊपर कि दिया सब, मगर बहुत अलग तरीके से मुझे उन्होंने। तो मैंने क्या किया कि फिर शादी हो गई हमारी, तो आई वॉज नॉट अर्निंग मेंबर, उनके ऊपर सारा प्रेशर आया। 2 साल बाद बेटी हुई, तब भी आई वॉज नॉट अर्निंग। बट ये था कि मैं 10th करके आई थी, तो मेरी गोदी में बेटी थी और मैं 12th के एग्जाम्स दे रही थी विद द डॉटर इन माई लैब। उसको फीड करके मैं हॉल में गई पेपर देने, ये लेके बैठे, फिर बाहर आई, मैंने इसको फीड किया, परेशान हुई 2-3 घंटे जब मुझे उसने छुट्टी से नहीं देखा। तो शी वॉज वेरी क्राइंग व्हेन आई केम आउट। तो चलो ये सफर हुआ तय। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रेगुलर तो मैं पढ़ नहीं सकती, फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा और फिर उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। वो अलग बात है, आगे जाके एक ऐसा सेटबैक हुआ कि मेरी वो डिग्रीज भी लूज हुई। अगेन आई हैड टू डू माई डिग्री फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल। इसमें मैं जरा पूछूं कि जैसा आपने बताया, सो आफ्टर योर डॉटर वाज बॉर्न, एक्सपेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। सो वेरी पिन पॉइंट में सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि वो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी सर की जो आपने यूज करी टू बिकम दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैं बोलूं जो आजकल बहुत टर्म एक यूज होता है, या मैं बोलूं कि उससे जल्दी से जल्दी भी और अच्छे तरीके से ऑन ए पॉजिटिव नोट, आप दोनों ने क्या, आपकी क्या मेहनत थी, क्या स्ट्रेटेजीज थे, क्या पॉइंटर्स थे जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए? मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले से ही बेचारे समझ गए थे कि मुझे डबल ड्यूटी करनी है। वो मॉर्निंग में उनका ऑफिस था 6:30, वो जाते थे 7-7:10 उनका ऑफिस मार्क टाइम था। फिर 2-2:15 छुट्टी होती थी। देन आई यूज टू गिव हिम थ्रू आउट डे का लंच पूरा, ही यूज टू टेक अलोंग विद ब्रेकफास्ट करके ले लंच घर से, जबकि पता है छुट्टी हो गई ऑफिस की, बट ही वाज नॉट एबल टू कम होम बिकॉज उनको अगले पार्ट टाइम में जाना है। क्योंकि फिर 8 बजे मॉर्निंग का बंदा निकला हुआ, यू कैन से अराउंड 6 o'clock ही यूज टू कम बैक बाई 8। होल ऑफ द डे वो अलग, मैं अलग। बट स्टिल द प्रॉब्लम वाज कि भाई अब हमने शादी की है तो हम ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते एक साथ, हमें आगे प्रोग्रेस करना है। और फिर एक सोशल प्रेशर भी होता है कि अगर प्यार किया है तो उसको निभाना भी है, और दूसरी चीज ये भी करनी है कि ग्रो करके भी दिखाना है। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। खाली गवारों में से नहीं है कि हाँ बैठ गए शादी कर लिया जाए। वी हैड टू grow also, and he was also very ambitious, till now he is very ambitious,
एंड आई वाज आल्सो एम्बिशियस, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड फैमिली से थी, एम्बिशंस तो थे ही, तो उनके ऊपर तो ये था कि वो बैकग्राउंड उनका गरीबी का था, तो उनको तो मेहनत करना ही था। राइट मेरा पार्ट ये था कि व्हेन माय पेरेंट्स प्रेशर्ड मी कि तू इसको छोड़, ये गरीब है, तो आई सेड कि सवाल ये नहीं उठता कि वो गरीब है, सवाल ये है कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ है। यू प्रोसेस योर वर्ड्स एंड से कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ है, वो राइट गरीब कैसे हो सकता है? वो मेरे राइट साथ मैं उसके साथ शादी करूंगी। आई चैलेंज माई फादर कि अगर अगले 10 साल तक वो गरीब ही रह गया, अगर वो गरीब ही रह गया, तो मैं आपकी बात को उस मोड़ पर भी मान लूँ, प्रैक्टिकल वे, एल्स नहीं, राइट राइट एल्स ग्रेट। नहीं। एंड आई ऑल्सो वर्क। जैसे मेरी बेटी 1 साल की हुई, मेरे को लक यहाँ पे बहुत अच्छा साथ दे गई। जिस एरिया में मैं रहती थी, वहां पे अच्छे टीचर्स की बड़ी कमी थी, और मेरी टीचिंग स्किल्स कहाँ से डेवलप हुई, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो जैसे छोटे मोहल्ले के बच्चे थे, मेरे आसपास के पड़ोस के, सब मुझे पूछने आ जाते थे, दीदी पढ़ा दो, दीदी पढ़ा दो, फिर पढ़ा देना, अच्छे नंबर आने का, दीदी पढ़ा दो। तो वो मेरा जो कहीं अंदर एक पढ़ाने को लेकर के शौक था, वो उन बच्चों ने ही जगाया, उन बच्चों ने ही जगाया। और उसके बाद मेरी मैरिज के बीच में 4-5 मंथ्स फ्री थे, तो मेरे पास में एक प्ले स्कूल खुला हुआ था, तो उन आंटी ने मुझे कहा कि तेरी शादी के भी 4-5 महीने रहते हैं, तो व्हाई डोंट यू जॉइन माय स्कूल, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम गोइंग फॉर माय डिलीवरी, तो यू टेक ओवर। तो मैंने वो 5 महीने जब वहां टीचिंग की, तो सारे पेरेंट्स ने उनको बोला कि इन मैम को जाने नहीं दे रहा, इन मैम को जाने मत देना। तो बट द थिंग वाज कि मुझे तो जाना ही था, मेरा तो डिसाइड हो चुका था, फरवरी में मेरी राइट शादी होती है। तो उन्होंने राइट बोला ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बेसिस पर ही आई है, ये 5 मंथ्स ही शी विल कंटिन्यू, वो भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो वहां से मेरा शौक जो बढ़ा, फिर वो मैं जब अपने इस जगह पे आ गई, अपना छोटा सा घर था, टू बी वेरी फ्रैंक, 1 रूम विद 1 स्मॉल लिटिल साइड कट किचन एंड वेरी स्मॉल हाउस, बट दैट वाज मेड बाय अस। हमने शादी के 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही उस छोटे से मकान को बना लिया। उसके लिए सैक्रिफाइसेस बहुत हुए, हमने गोल्ड रखा, बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा टारगेट था कि दिल्ली में किराए के मकानों में ज्यादा देर नहीं रहना। अपनी बच्ची को हम अपने ही मकान में लाके पैदा हुई, वो अब तब उसको अपने घर में पैदा हुई, मतलब ये कह सकते हैं हम। great फिर great वो ma'am, you talked about your daughter. So when your daughter turned 3 and good play school was very scare, ये मैं बोलूं कम थे, so तब आपने अपना स्कूल शुरू करने का निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया, एंड व्हाट वाज दैट डिसीजन, उसके बारे में मैम प्लीज बताइए। दैट वाज अ वेरी ब्लेस्ड डिसीजन कि बेटी अब 3 साल की हो गई। अब प्ले स्कूल का वहाँ प्रॉब्लम था कि हाँ हाँ प्ले स्कूल, क्योंकि जहाँ हमने घर लिया था वहां तो एसपास अभी डेवलप हो रहा था, तो स्कूल की तो सिचुएशन नहीं थी, तो कैसे करते। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सरिता विहार से लाजपत नगर, बिल्कुल जहाँ बस रुकती है वहां पर एक प्रिपरेटरी स्कूल खोला हुआ है, टैगोर इंटरनेशनल ने, ऑन रोड है बिल्कुल। तो मैं बच्ची को लेकर गई वहां पर, और आप यकीन नहीं मानेंगे, दैट टाइम वी डिडंट हैव अ साइकिल आल्सो। स्कूटर की तो बात ही बाद में लिया, जब बच्ची 5-6 साल की हो गई तो उठा नहीं पाते थे उसको, तो सोचा अब ले लेना चाहिए, कि गोदी में नहीं उठाया जाता। तो दैट वाज आल्सो बिग थिंग इन बिटवीन। तो उसको लेके मैं पहुंची वहां पर, मैंने बोला कि मैम इस बच्ची मेरी बेटी है ये, और इसका एडमिशन मैंने कराना है। और कोई उनको भी पता चला कि पढ़ी लिखी लेडी है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, इतने अच्छे से बात कर रही है, शी इज नॉट, मतलब जैसे कहते हैं ना वो लोग प्रिंसिपल्स है तो जज कर लेते हैं कि बंदे की राइट कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है। तो मैंने बोला, कह रहे हैं देखो ऐसा है कि बस फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी, यू हैव टू कम दिल्ली, सिट आउटसाइड, योर चाइल्ड, वी विल प्रिपेयर योर चाइल्ड एंड देन यू टेक द बस पे, आप लेके वापस चले जाओ। आई ओके सेड मैम आई हैव टू डू दैट आल्सो, इफ आई हैव टू डू आई विल डू दैट आल्सो फॉर माय चाइल्ड। बट थोड़ी देर बाद उनके मन में पता नहीं क्या सवाल आया, बोला कैन आई सजेस्ट यू वन थिंग। अब मैं उस बंदी का चेहरा नहीं भूल सकती कभी भी, पता नहीं वो किस ब्रांच में कहाँ सीनियर जूनियर रिटायर जो भी होंगी। शी वॉज अराउंड 40 years of age and I was half the roughly, and moreover she was not married, तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लेडी थी एक। तो मेरे को बोला कि एक काम करो, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ प्ले देयर, यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम एंड व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ नंबर ऑफ पीपल देयर, आपको आई है तो आगे भी आने वाली है, फिर राइट उनके लिए कुछ कीजिए आप। मेरे को स्ट्राइक किया कि बात तो है, राइट बात तो है, मेरी बच्ची का तो चलो मैं देखती हूँ कहाँ डालना है क्या करना है, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि मैंने कहा ठीक है मैम, आई विल पॉन्डर अपॉन इट एंड आई विल डू इट। यू हैव गिव, मैं वही देन एंड देयर इन द ऑफिस, उसी वक्त एक भी सेकंड लिए बिना मैं डिसाइड करके वहां से निकली कि मेरे को खोलना ही
है। कोचिंग तो चलना स्टार्ट कर दिया था 2 साल पहले, कोचिंग तो स्टार्ट कर दिया था, तीन तीन ही साल हो, जैसे बेटी हुई, डिलीवरी हुई, बस उस शुरू कर दिया उसी टाइम साइड बाय साइड। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं हस्बैंड से बात करके डिस्कस करके इसको फाइनल करती हूँ, ये नहीं पूछती हूँ देखती हूँ ना। आई वॉज वेरी श्योर कि आई हैव टू गो फॉर इट। घर आई तो इस बीच में एक छोटा सा हमने रोहिणी में भी मैनिपुलेट, जैसे कैसे भी हमने जुगाड़ बना के एक छोटा सा प्लॉट रोहिणी में हमारा हो गया, उसको हमने सेल किया। मेरे घर के बाजू में ही एक और फ्लैट खरीदा उसी पैसों से और उसमें प्ले स्टार्ट कर दिया। एंड पीपल रिस्पॉन्डेड सो वेल बिकॉज दे कुड मेक आउट कि एक मतलब पढ़े लिखे इंसान ने खोला है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और 15 साल मैंने उस प्ले को चलाया और बंद करने की स्थिति ऐसी हुई कि वो पेरेंट्स ने इतना मुझे बोला कि मैम हम आप प्लीज बंद ना करें, हम ये लिख देंगे सोशल वर्क होता है, हम फीस भी नहीं देते, हम कुछ भी नहीं करते, बस आप बंद ना करें। तो मेरा तो फिर वही था कि दोनों फ्लैट मेरे सील कर जाएगी गवर्नमेंट, और मैं तो बड़ी मेहनत से बनाए हैं। एक बार तो भाई मान कि नहीं करूं बंद, तो हस्बैंड कहते थे देख सारा घर को पीछे जाना पड़ेगा तेरे, बाई चांस सील हो जाता है। तो फिर मुझे वहां पर अपने मन को मार के सेक्रीफाइस अपने बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए करना पड़ा कि अगर मेरी वजह से कल ये फ्लैट्स चले जाते हैं या सील हो जाते हैं तो मैं उस ट्रॉमा को नहीं, ट्रॉमा तो मेरे लिए अब भी है, जब सारा शैटर होगा ट्रॉमा तब भी है, और मेरे लिए आगे खड्डा पीछे खाई, आई कैन नॉट, अब मैं बच नहीं सकती उस चीज से, मुझे इसमें से गुजरना ही होगा। अब किस में से गुजरना है वो मुझे अपनी फैमिली को लेते हुए डिसाइड करना था। तो देन आई वांट फॉर द डिसीजन, ठीक है चलो बंद करते हैं। दैट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। इतना एस्टैब्लिश्ड काम जिससे हम इतना ग्रो हुए, इतना आगे गए कि पीपल यूज्ड टू एडमायर कि भी बंदी में क्या बात है, कहाँ से कहाँ वाली बात जैसे बोलते हैं ना, 20 साल में कहाँ से कहाँ। आफ्टर 18 ईयर ऑफ कोचिंग, 15 इयर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, फिर जैसा आपने बोला डीडीए इशू के कारण वो शट डाउन करना पड़ा। सो हाउ डिड, a tough question again, how did depression affect you during your ideal month, and what role did meditation plays in your recovery? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ लोग उससे उबरने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ लोग उससे लड़ते हैं और रिकवर होते हैं और बाउंस बैक करते हैं डबल स्पीड के साथ, डबल एनर्जी के साथ। सो मैम, वो दौर, वो टफ दौर कैसा था? आपने कैसे मेडिटेशन के थ्रू कैसे आप रिकवर किया? हम इसके बारे में प्लीज बताएं। अब देखिए, अब तो मैं मुस्कुरा के बता रही हूँ, उस टाइम एक बड़ा ही अजीब दौर था, लेकिन मुझे खुशी इसलिए होती है, मैं हर आप प्रॉब्लम जो आप डिस्कस करेंगे मुझे उसमें मुस्कुराहट आती है, क्योंकि मैं गुजर गई उससे। मुझे आई पैट माई सेल्फ की गुजर गई मैं उससे, तो इसलिए आई ऑलवेज टेक द थिंग्स स्माइलिंग फेस की, भाई अच्छी बात है। तो हुआ ऐसा कि सारा शटर हो गया, तो अब वो दोनों फ्लैट्स हमने सेल कर दिए। अब सेल करने के बाद क्या हुआ, बिग अमाउंट आया हमारे पास ऑब्वियसली, तो वी शिफ्टेड इनटू अ वेरी बिग, वेरी बिग इन द सेंस कि बिग हाउस जिसमें 4 रूम, मतलब बड़ा घर हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बेटी तब 11th में हो गई, एमिटी इंटरनेशनल नोएडा ब्रांड से उसको पढ़ाया, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही थी। और अब मेरे को ये लग रहा था कि इस मोड़ पे पैसे की प्रॉब्लम आई, तो फिर बच्ची की तो आगे हायर एजुकेशन फीस कैसे, एक अगला भी एक सवाल खड़ा था, इम्पोर्टेंट ही था बेटी को लेके। तो फिर मैंने क्या किया, अब हमने बंद करके इधर शिफ्ट कर गए। फिर शिफ्टेड 4 months आई वाज आइडियल इन द सेंस कि मुझे वहां पे तो अक्टूबर में हमने ऐलान कर दिया सबको कि अभी आगे हम बच्चे नहीं लेंगे, एडमिशंस क्लोज। अब जो चल रहे हैं उनका फाइनल एग्जाम, चाहे कोचिंग वाले थे, उनका फाइनल एग्जाम करा के बंद कर दिया जाएगा। और जो आपके हमारे पास बच्चे हैं इनको भी एडमिशन जैसे जैसे आप हमें इन्फॉर्म करते जाएंगे, मेरे बच्चे का हो गया, मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के स्कूल्स में मेरे रिपोर्ट कार्ड लगे हुए हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी थैंकफुल कि वो सब पेरेंट्स ने बहुत बोला कि मैम इतना हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, हमारे बच्चे तो सेटल हो गए। तो बस वही था कि फिर हम मैं इधर शिफ्ट करके, था वो सरपा विहार में बट इन अ बिगर फ्लैट। तो 4 महीने मैं थी, तो सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भाप पाई, मुझे किसी ने नहीं बताया तुझे डिप्रेशन हुआ है। मैं खुद जो अक्टूबर से लेकर मैं झेल रही थी, मेरे को खुद पता चल रहा था कि आई एम सिंकिंग समवेयर एंड आई विल नॉट शो टू माई पीपल, बिकॉज वो सोचेंगे हमने इसके साथ जाती कर दी, इसका काम बंद करा के जाती कर दी, इसका बहुत जुल्म कर दिया। मुझे अकेले ही उसको लेना था कि मैंने खुद डिसीजन लिया है, अपने परिवार के लिए लिया है,
और मैं इसको वो नहीं करूंगी कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने आप लोगों के लिए ये किया वो, नहीं, इट वाज अ जॉइंट वेंचर, हमारे एक घर के बेटरमेंट के लिए हमने डिसीजन लिया। उसके बाद मुझे पता लगने लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही, एक एज भी 40, वैसे भी आप समझ सकते हैं लेडीज की 40 इयर्स की एज में और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल सॉर्ट ऑफ, और मैं बच्ची को भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी, हस्बैंड को इतने प्रेशर में नहीं डालना चाहती थी, तो ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। अपने आप में अकेली विमहंस गई, बताया, सब कुछ डिस्कस किया कि मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला इट इज अ बिट सीरियस, यू गो इनटू मेडिटेशन थोड़ा, अब आप घर पे ही हैं, कुछ नहीं करते, घर का छोटा मोटा काम फटाफट कर के आप मेडिकेशन खा के आप अपने को फिट कर पाएंगी। अगर कहीं जॉब करती होती, कुछ करती होती तो नींद आती है, प्रॉब्लम होती, तो अभी आप कर सकते। ओके। तो मैंने वही किया, अपने आप को वापस फिट किया, सुबह उठ के रोज एक्सरसाइज करना, रोज वॉक पे जाना, और बस सारा दिन ग्रैटिट्यूड में कि भगवान जी आप प्लीज आप अच्छा कर दिया आपने मुझे, मतलब उस फीलिंग की तरफ मैंने अपने आप को बढ़ा दिया कि अब मेरी जिंदगी का क्या है नहीं पता चल रहा, अभी आगे क्या है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ नहीं है। ग्रेट। अब मेरे को भगवान जी कुछ करना चाहते हैं, मुझे कुछ तो मेरे को तोड़ा है, कुछ नई मेरी कोई नई चीज बनाएंगे अब वो। दैट वाज अ इनर फेथ फॉर दैट। तो बस फिर वही था कि ये सारी चीज गुजर गई, बच्ची ने भी कोऑपरेट किया, हस्बैंड ने भी कोऑपरेट किया, उस चीज से मैं बाहर निकल गई। एक वो अब मेरा स्कूल और मेरा सेंटर मेरे लिए एक खोई हुई चीज ना होकर एक बहुत खूबसूरत यादें बन गया। मैं उनको आज भी अच्छे से याद करती हूँ। फलाना बच्चा था, पेरेंट मिल जाते हैं आज भी, क्योंकि लोकल सरता विहार में रहती हूँ, वही राइट। पेरेंट्स टकरा जाते हैं, बट आई डोंट फील बैड कि हाँ 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 ये बच्चा उसकी मम्मी है। पेरेंट्स आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, सरता विहार में आज भी मिलते हैं और आज भी याद करते हैं मैम आपने हमारे बच्चे को बहुत अच्छा बनाया, कोई कहाँ चला गया, इतना अच्छा बेस दिया, अच्छे स्कूल में सिलेक्शन हुआ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरी रिस्पेक्ट उन्होंने मेंटेन रखी। Great, great. I'm moving to the next stage of the life, next पड़ाव की जब मैं बात करूं, so how did you find the courage to take up the headmistress position in a difficult environment after, जैसा आपने बताया एक इमोशनल टर्मोइल था, सो मैम वो फिर आपने कैसा डिसीजन लिया और इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, यस यू आर एक्सपीरियंस, यस यू आर हैविंग दैट, मैं जब टैलेंट की बात करूं, एक्सपोजर की बात करूं, बट बीइंग इनटू दैट इमोशनल टर्मोइल, वो फिर मैम कैसे आप इसमें स्विच हुई, इसके बारे में प्लीज बताइए। स्विच इन द सेंस कि व्हाट आई विल लाइक टू से इज कि मैं जैसे वॉक से आई तो एक उस टाइम पे क्या होता था कि ये सब नहीं होते थे इंटरनेट वगैरह, तो वहां पे तब उस राइट। टाइम केबल वाले के थ्रू केबल लग के और नीचे ना एक स्क्रोलिंग, बस वो ज्यादा टाइम नहीं रहा, बस 2 3 साल वो बदल गया फिर माहौल। लोकल उन्होंने एड्स। हाँ उस टाइम हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने फिर उस ऐसे आके बैठी, मेरी बेटी को बोला बेटा एक कप चाय पिलाएगी, चाय से वो चाय ला रही, मैं देख रही हूँ नीचे स्क्रोलिंग हो रही है, वांटेड हेडमिस्ट्रेस, कोई कह रहा है प्रिंसिपल, कोई कह रहा है हेडमिस्ट्रेस, कोई कह रहा है प्रिंसिपल है। अब देखो मैं तो प्रिंसिपल अपने स्कूल में तो मैं खुद ही थी, ऐसा तो है नहीं तो प्रिंसिपल रही नहीं थी, अपने राइट। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेशन सारा मैं ही करती थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइज, राइट। टीम भी रखते थे, तो वो सारा मुझे प्रैक्टिस था। बट अब बात ये थी, सवाल ये था कि क्या किया जाए, अब जिस एरिया में ये स्कूल्स हैं क्या जाया जाए नहीं जाया जाए, मुद्दा ये बन चुका था। अब ओके। घर में बोल रही हूँ तो डिनायल हो रहा है कि कहाँ तू क्या यार क्या। सरिता व्यवहार टू गेटिंग इनटू दैट। हाँ बात सत्य की नहीं थी, वो ऐसे तो वो भी जानते थे कि मैं कुछ नहीं था, मेरे साथ आ गई, तो मैं उससे बोलती ऐसे नहीं होता। एजुकेशन मुझे भगवान ने अगर पूरा इतना 2 20 साल मैंने इतना कमाया मुझे नीचे डाला है, तो कुछ तो कहीं कुछ तो उनकी मेरे से कोई ख्वाहिश है जो वो पूरी करना चाहते हैं, तो लेट मी ट्राई। तो बोला कि देख ले फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो ये तो वो चाहते थे ना कि मैं अभी भी ज्यादा कमाऊं, देखो इस सच्चाई से तो भागा नहीं जा सकता राइट, राइट, कि वेरी ट्रू। कमाने मैं ना कमाऊं, ये तो अभी भी घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। बच्ची के आके जैसे खर्चे खड़े थे, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं जाके देखती हूँ, बट कहते हैं ना कि डेस्टिनी डिजाइन होती है सब कुछ, राइट। हम हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मैं वहां गई, बताया उन्होंने जिनके स्कूल जाना था, उन्होंने 2 3 कॉल्स किए कि अब हम कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। तो फिर जो वो हमें कॉल कर रहा है बार बार, तो हम तो पहले उसको ही प्रेफरेंस देंगे ना, क्योंकि भी इज सो काइंड पर्सन, वो राइट। कंसर्न तो है कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बाकी तो राइट। स्कूल से कोई कॉल भी नहीं आया, जबकि इंटरव्यू का डे उनके साथ भी डिसाइडेड था
और तीनों स्कूल्स को मैंने कॉल करके निकली थी कि मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ, मेरा वो एरिया देखा नहीं, अब जरा मुझे लैंडमार्क्स बताइए। उस तो टाइम पे मैं गूगल मैप भी नहीं था इतना नहीं एडवांस। था, एंड आई न्यू ड्राइविंग कार एट दैट टाइम ऑल्सो। वाओ और ग्रेट। आई हैड माई ओन कार। इस टाइम तक हम 2 कार्स भी चेंज कर चुके, वी डिड अ लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस, ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर मैंने बोला कि मेरा एरिया देखा हुआ नहीं है, ये कह रहे हैं रहने दे तू ऑटो कर ले, पता चला तुम पीपल आर बोथ आर स्टक समवेयर देयर, यू गो बाय ऑटो। बारिश भी हो रही थी, हम ऑटो में गए, तो गए बैठ गए, जाके बात हुई। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही मुझे रख लिया, जबकि स्कूल का लेवल कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने अपना सारा जो भी मेरे प्ले स्कूल के फोटोग्राफ्स थे, एडमिशन फॉर्म्स थे, जो भी वहाँ की सारे हम फंक्शंस करते थे, प्रोसीजर सर्टिफाइड। फिर आपको पता ही है प्ले स्कूल में इतना दिखावा, एल पॉकेट के सरताज जैसे में कितना वो पैम्पर करके पेरेंट्स को रखना पड़ता है, वो सारा कुछ मैं लेकर गई थी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के। सारा जो हर बच्चे के एडमिशन का एक फोल्डर होता था, फाइल में लगता था। राइट फाइल राइट। बस सच बिग इनफ, क्योंकि 18 साल तक के बच्चों की फाइल थी, एकदम ईयर वाइज थी। तो सारा उन्होंने देखा, तो ये तो वो समझ गए कि भाई बंदी में बात है, तो अब इसको रखते हैं तो पे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो ओके। है नहीं। आई ये इश्यू हो गया उस वक्त। तो फिर सैलरी को मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया उस वक्त, यही सोचते हुए कि जैसे मैंने उस एरिया में जाकर देखा, मुझे ऐसे लगा कि पढ़ाई की जरूरत तो ज्यादा यहीं पे ही है। 20 साल तो पढ़ा लिया जिनको पढ़ाना था, पैसे भी बहुत कमा लिए, और पढ़ाई की असली कीमत तो यही है। जैसे कहता है ना ईश्वर, उसने एक ऐसे स्पिरिचुअल आपको फीलिंग्स क्रिएट कर देता है कि भाई यहाँ पे इतनी जरूरत है। और वो एरिया में मुझे पता भी नहीं था अंदर कि ऐसा भी एरिया दिल्ली के अंदर है। तो मैं तो कहा ठीक, ग्रेट। आई सेड फिर मैं फिर भी स्कूल में यही बोल के आई कि मैं जाके आपको 2 दिन बाद बताती हूँ। बट ये हुआ कि वहां से फिर 2-3 बार कॉल ही आ गया, मैम आपने डिसाइड कर लिया, मैम आपने डिसाइड कर लिया। मुझे लगा कि दे आर इंटरेस्टेड कि आई शुड ज्वाइन देम, तो देन आई ठीक है, मैं ठीक है आती हूँ। मैं कुछ कंडीशंस उनकी थी, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर ली कि चलो कोई बात नहीं, स्कूल के अंदर नहीं जैसे कि होता है। अभी मैं तो सिख फैमिली से थी, और साड़ी वाड़ी साल में 2 बार पहना हुए, रोज साड़ी में ही आना है, और बसों में आ जाना कैसे मैं मैनेज करूंगी। बट ऑल द चैलेंजेस आई टुक, अगर ये इसके साथ ही आ रही हैं तो मैं कंडीशंस नहीं लगाऊंगी, कोई बात नहीं। अगर इनको लग रहा है तो प्रिंसिपल सीट पे वैसा ही इनको लगता है कि अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छा ही कह रहे हैं, बुरी बात तो कह नहीं रहे हैं। तो देन आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग एंड देन आई स्टार्टेड। मैंने अप्रैल में नए सेशन में, अप्रैल में सेशन शुरू होते हैं दिल्ली में, अप्रैल में मैंने ज्वाइन कर दिस वाज तक पहुंचने का सब। मैम मूविंग टू अनदर टफ क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, यस, एट दैट टाइम ऑफ पीरियड, और आजकल भी बहुत बार किसी भी इंस्टीट्यूट्स की जब मैं बात करूं, इवन ऑफिस की बात करूं, कॉर्पोरेट्स की बात करूं, सो बहुत बार एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट एक रहता ही है। सो हाउ डिड दैट इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल इम्पैक्ट योर कैरियर एंड मेंटल वेलबींग इन लास्ट, मैं जब बोलूँ 2-3 साल की जब मैं बात करूँ ऑफ सर्विस, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि न्यू कमर्स आते हैं या न्यू ज्वाइनीज आते हैं, एंड जो ओल्ड एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं, और अगर मैं जब बोलूँ सही, जब मैं वाक्य में जब बोलना चाहूँ यहाँ पे, जो एक्चुअल पिलर रहते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, ऑर्गेनाइजेशन के, उस संस्था के, सो बहुत बार ऐसा होता है कि उनमें वो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है। सो वो कैसा था, एंड आप क्या इसमें एक जनरल राय देना चाहेंगी कि वो किस लेवल तक नहीं होना चाहिए, या इन चीजों को इतने अच्छे, मैं जब बात करूं एजुकेशन सेक्टर की, जब बात करूं इस सेक्टर से ही एटलीस्ट थोड़ा सा इसको दूर रखना चाहिए। मैम इसके बारे में इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज बताइए। कंफर्टेबल इन द सेंस कि ऐसे टॉपिक्स पे बात करना थोड़ा होता तो है ही है, लेकिन ठीक है, बात करना जरूरी भी होता है। अगर बात ही नहीं करेंगे तो किसी चीज के बारे में कुछ सोसाइटी में चीजें पहुंचेगी भी नहीं। स्टार्ट पॉलिटिक्स देखो होती है हर जगह। पहले मुझे नहीं पता था, बिकॉज मेरा अपना ही स्कूल था, मेरी ही चलती थी, मैं ही सब कुछ करता धरता, तो मुझे तो नहीं पता था। बट आई वेंट देयर एंड फाउंड कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लोग आप में बुराई ढूंढ ही लेते हैं, जो कि यहाँ इस एरिया में लोगों ने मुझ में नहीं ढूंढी। इतना अप्रिशिएट किया मुझे, मेरी मेहनत, मेरे काम को, मेरी क्वालिटी को। तो फिर वही बात आई दिमाग में कि शायद यही चीज ही कही जा रही थी मुझे। तो कहा जा रहा था ना कि नहीं कैसे मैनेज करेगी वहां, या वो शायद वो यही चीज थी। मुझे क्लिक तो जल्दी कर गया था। जैसे मैंने इंग्लिश में बात करना, तो किसी पेरेंट ने जाके ऊपर कंप्लेंट करना कि इंग्लिश में बात करती है, बड़ी तड़ी मारती है। तो फिर ये रहता था कि
जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है तो प्रिंसिपल तो इंग्लिश में ही पहले बात करेगी। आप आके बोलिए हम नहीं बोल पाते, तो मैं तो That's हिंदी a में भी different बोलना thing. जानती हूँ, Hmm. मेरे को बंगाली भी आती है, मैं सिख फैमिली से हूँ, मुझे पंजाबी भी आती है। फिर आप मुझे बोलिए कि मैम हमें ये भाषा समझ आती है, मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन वैसे तो मैं इंग्लिश में पहले देखो बात करूंगी, वरना स्कूल का रेपुटेशन ही नहीं बनेगा कि प्रिंसिपल को ही नहीं आती और बैठे हैं स्कूल खोल के। तो मेरी एक हम जिस एरिया से थे, हमारे जबान पे जैसे कहते हैं ना चढ़ जाती है Right, इंग्लिश, हाँ. तो हिंदी में इंपॉर्टेंट था। तो बस उनको बड़ा लगता था कि ये तो बड़ी वैसी है ऐसी है, कुछ डर फैला दिया, बड़ी ऐसी है, मतलब जैसे कहते हैं ना एक अलग ही मेरे बारे में उन्होंने बना दिया। पर जो स्कूल के ओनर थे उनको पता था कि नहीं बंदी में बात है, शी इज नॉलेजेबल और इतना इसको आता है। और तो उन्होंने इस चीज को किया लोगों को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनको आप जो बोलोगे। और करते करते मैंने 10 साल बहुत वहां पर जान डाली, और धीरे धीरे लोगों ने इस चीज को समझा, वक्त के साथ समझा और अप्रिशिएट किया। और फिर ऐसा बना दिया कि मुझे वहां पे एक ऐसा फिगर बना दिया कि भाई ये स्कूल बेस्ट है भाई, मैम इंदु मैम का तो मतलब कोई जवाब नहीं टाइप्स भी। मैंने उन्हीं लोगों से फिर ये भी चीजें सुनी, बहुत इज्जत भी मिली मुझे बाद में, जो कि मैंने कमाई। सवाल किया, पेरेंट्स का जो था वो पॉलिटिकल में नहीं आता, Hmm. वो उसके Right. अज्ञानता में आता है, उस Right. एरिया में आता है, उनको समझने में मुझे फर्क लगा में आता है। लेकिन 10 साल जब मैं उस इंस्टीट्यूशन में काम कर चुकी थी, तो अब इंस्टीट्यूशन के लोगों को तो समझ आना चाहिए था कि मैं, मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं क्या वर्थ रखती हूँ। तो स्टार्टिंग के तो जब टीचर्स थे, वो मतलब स्टाफ की हमेशा मुझे एक तरह से शॉर्टेज ही रही, शॉर्टेज भी रही, क्वालिटी वाइज भी शॉर्टेज रही। तो मुझे मतलब इतना ओवरलोडिंग रहता था कि टीचर्स अप टू द मार्क नहीं है, तो मुझे उनकी कोई मिस्टेक नहीं उनसे होनी चाहिए, मुझे उनको पहले ही लेसन बताने हैं ताकि कोई बाहर गलत चीज ना जाए, ऐसे करके एक प्रेशर हमेशा रहता था, ये चीज रहती थी मेरे ऊपर। लेकिन वो तक तो बर्दाश्त होता है कि हम मेहनत करने आए हैं, मेहनत करेंगे और जाएंगे। लेकिन जब हम आपकी मेहनत के साथ और मैनिपुलेशन जुड़ने लगती हैं, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, या सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां आती है कि जब हम किसी जूनियर के साथ थोड़ा नजदीकियां बढ़ा लेते हैं, तो वहां पे मैं अब टेक अवेज जो यही कहूंगी कि आप एक जो है अगर सीट पर हैं तो आप किसी से रूड ना रहें, किसी से गलत ना करें, मगर अपनी जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, उस पे आप जरूर डटे रहें। Hmm. Let them know कि these are your knobs, and moreover don't try to be friendly with them, because अगर आप उनसे दोस्ताना माहौल क्रिएट कर लेते हैं, मैं ये गलती कर चुकी हूँ, मैं इसीलिए ये कहना चाहूंगी कि बाद में वो कब आपको धीरे धीरे आपके नजदीकियों से सीप इन करके, कब आपको वो आपके करीब आकर इतने सारी नॉब्स वो आपकी जान जाते हैं कि बाद में उन्हीं से ही वो मैनुपुलेशन करके आपको नीचे वालों के आगे भी, क्योंकि आप तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो बंदा ऑफिस से कनेक्टेड है, चाहे कोई उसके अंदर कह लो कि आपका कोई आपके नीचे कोई पीए है या जो भी है आपने रखा है, या कोई जूनियर प्रिंसिपल हैं जो भी हैं, तो वो तो फिर मैनुपुलेटिंग रहती हैं आसपास, वो तो घूमते हैं, क्योंकि आप तो कम कांटेक्ट में आते हैं, वो बंदे ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, पब्लिक के भी ज्यादा आते हैं धीरे धीरे और टीचर्स के भी। तो वो किस बात को आपके किस तरीके से बता दिया जाएगा, आपको ये रिस्क नहीं लेना है। Hmm. जो मैंने सीखा है वहां पर, ये चीज सबसे बड़ी है। और डायरेक्ट पेरेंट्स की डीलिंग हमसे नहीं होती, तो उस वहां पे भी बहुत सारे मैनिपुलेशन हो जाते हैं, पेरेंट्स के दिमाग में बैठ जाता है भाई मैम से तो डायरेक्ट वास्ता पड़ता नहीं है, जो बाहर बंदा बैठा है उसी से पढ़ता है, उसी से बना के रखो। एक मतलब जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो फिर होती है वहां पर। तो यहीं से ही फिर उस बंदों के अंदर ये फैलने लगता है कि शायद इससे ज्यादा मैं पावरफुल हो गया। और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि जो बंदी मेरे ऑफिस में ही थी, उसके उसके पास नॉलेज नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बट उसके अंदर एक था कि बोलने का अदब अच्छा था। और कुछ मेरे पैर में एक बार चोट लगी थी, सर्जरीज मेरी होनी थी, तो मेरे को ऑपरेशन के लिए जाना था, कोई बंदा ही नहीं तैयार था, तो हमें एक बंदे को तैयार करना पड़ा कि मेरे पीछे से कोई छोटा मोटा जैसे कोई काम है वो कर दे और बता दे, तो उससे मतलब चल चल पाए कुछ टाइम, जैसे मैं सर्जरी पीरियड में हूँ तो वो चल जाए। तो जब वापस लौट के आई तो देखा चलो इसने संभाला ही था, तो हमने उसको फिर वहीं पे ही रहने दिया। मेरी ये मिस्टेक हुई कि आई शुड हैव सेड कि नाउ यू हैव टू गो बैक टू पेविलियन। तो हमने बोला चलो अब मुझे फिर थेरेपीज के लिए जाना पड़ेगा, एज भी मेरी रफली अब 45 प्लस से ऊपर ही हो गई थी, तो मुझे भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब है तो है।
तो हमने उस चीज को रहने दिया। वही वही मिस्टेक्स करते हैं कई बार हम, कि हमें समझ देर से आती हैं चीजें, वो नहीं होनी चाहिए थी। Okay. So, मैम इसी कंटेक्स्ट में पूछना चाहूंगा, आफ्टर 20 years of your deep commitment, so what draw you to leave the position? क्या हुआ ऐसा कि मतलब जस्ट आपने अभी बताया, पूरा डिटेल में आपने बताया, बट या नहीं ठीक है, नाउ दिस इज द लिमिट एंड बस अब इसके बाद इट इज बेटर टू, क्योंकि एक गुड नोट पे अपन छोड़ के जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ, मेरे को पिछले 4 साल से ये चीज महसूस होने लगी थी कि हाँ, समथिंग फिश इज गोइंग ऑन, समथिंग बैड इज गोइंग ऑन। क्योंकि मुझे टीचर्स के चेहरों से, उनके बात करने के बदलते अंदाज से, या फिर बाहर के जो कुछ रूमर्स थे और ऐसे कई चीजों से हिट्स मिलने लग गए थे। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एंड मे बी इट इज बाई दीज पीपल ओनली और बाई द सीनियर पर्सन जिनका स्कूल है उनकी तरफ से हो रहा है, क्या हो रहा है, आई वॉज नॉट एबल टू मेक आउट। बाई आई स्विच माई लाइट्स ऑन, समथिंग वाज गोइंग। तो उस वक्त जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि मेरी ग्रेजुएशन का कुछ पेपर्स का ऐसे फॉल्ट हो गया कि वो मेरे पास रहे ही नहीं। मैंने 2012 में दोबारा से ग्रेजुएशन कर ली थी, 2012 में कर ली थी, और फिर उस चीज को मैंने थिंक ही रहने दिया, ये सोचते हुए कि अब इस बंदी को हमने डाला है तो मेरे को स्कूल ने चेयरपर्सन में डाल दिया, चेयरपर्सन की लिस्ट में एज ए वाइस प्रेसिडेंट डाल दिया, तो फिर मुझे क्या करना है, मैं तो स्कूल आऊंगी जाऊंगी, मैं तो अपना सीट पे बैठूंगी तो मैं ही। बट हमने उनका नाम एज ए प्रिंसिपल पे डाल के हमने सेंड कर दिया। वो भी शायद सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी थी, जो मैंने अपना बड़ा दिल करके सोचा कोई बात नहीं, क्या हो गया। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन होगी, स्कूल में रहते रहते मेरी बीएड, लास्ट के टाइम में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई, और इवन वहां तक कि लास्ट का जब छोड़ने का पीरियड आया तो स्कूल तब जाके 10 साल वो ऐसे पीरियड से चल रहा था जब रिकॉग्नाइज हो नहीं, पूरा नहीं हुआ था, सेमी रिकॉग्नाइज था, सेमी रिकॉग्नाइज था। हम कर पा रहे थे सब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, बट दैट वाज लिटिल एक स्टेप पीछे था। तो जिस साल मैंने स्कूल छोड़ा उसी साल ही मेरे रहते रहते ही वो स्कूल रिकॉग्नाइज टोटल कंप्लीट वाला वो हो गया, हुआ। एंड द बैड लक वाज कि आई हैड टू लीव द स्कूल। और मैं ये सोच के चल रही हूँ कि मैंने उसी दौरान डिप्लोमा इन टीचर्स ट्रेनिंग फ्रॉम अब्रॉड से कर लिया, ईबी यूनिवर्सिटी से। तो मैंने सोचा कि चलो एक हम अब ये रिकॉग्नाइज हो गया है तो बेटर टीचर्स अब हम आगे सिलेक्ट करेंगे, अब रेपुटेशन स्कूल का और बेटर बनाएंगे। बट आई डिडंट नो व्हाट फेथ इज टेकिंग। सो डेफिनेटली जो आपका बीएड था वो उसने आपको काफी हेल्प किया होगा आपके कैरियर के लिए। एंड यस, देखो मेरे को बीएड की स्कूल ने बस 50 बार मुझे बोला कि आपको बीएड की जरूरत क्या है मैम, इतना एक्सपीरियंस है और इतना स्कूल आप हमारा अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बाकी मैम का नाम जा रहा है। लेकिन वही गलती है कि मैम का नाम जा रहा है तो कहीं बंदे के दिमाग में ये आने लगा कि भाई मैं भी उतनी ही, जबकि इफ आई स्पीक फ्रैंकली तो मे बी अगर उन्हें बोला जाए कि आप 10 लाइनें लिखो इस चीज पे बैठ के, तो वो भी उनसे बस का था कि नहीं। बट ये था कि बाकी और ड्यूटीज को निभा लेना। तो वही करते करते ये हो गया कि भाई शायद मैं ही सब कुछ हूँ, जैसे आ जाता है ना किसी के दिमाग में। अब देखो कोई अगर मान लो ये सोचे कि मैं प्रिंसिपल ही हूँ तो वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि वो इस लायक नहीं है। हाँ, मैं उसको भी ये कहती थी कि मुझे तू ना समझने लग गई है खुद को। दैट वाज मैनिपुलेटेड इन द वे कि मैम कहती है कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ। इट इज वेरी बिग डिफरेंस ये कहने में कि आप मैम समझने लग गई हैं खुद को। समझने में तो कोई कुछ भी समझ सकता है, मैं भी समझ सकती हूँ तो मैं ये कह रही हूँ समझने लग गई हूँ मैम, आपके अंदर वो चीज मुझे दिख रही है। तो अब उसको ये था कि मेरा नाम जाता है, साइन मेरा लगता है, तो चलो उसको समझने लगा। लेकिन आपके अंदर वो कैलिपर नहीं है, आपको पता है कि आप उस लायक नहीं है, पर आपने मैनिपुलेट करके चीज को ये रखा कि मैं समझती हूँ कि आप बनना चाहते। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप ये सोच सकती हैं कि आप बन सकती हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता उस चीज का। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जिसकी जितनी समझ होती है मैं कहती हूँ वो उतना ही करता है। फिर मैंने स्कूल को कुछ ह्यूमिलेशंस भी हुए ऐसे, जैसे कहते हैं ना किसी की बातों में आकर जैसे ह्यूमिलेट कर देना मेरे को, क्या कि मतलब अच्छा नहीं लगती थी। कुछ चीजें ऐसी बड़ी अजीब अजीब सी होती थी जो पहले कभी नहीं हुई। तो आई कुड फील कि नाउ दिस इज मे बी मैं 60 हो गई थी, स्कूल अब कोई नई चीज डिसीजन लेना चाहता था, कह नहीं पा रहा था। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट समथिंग फिशी वाज गोइंग ऑन। तो मैंने फिर यही बोला कि ठीक है, इस दौरान फिर मैंने
स्कूल को 3 महीने का ब्रेक दिया 3 महीने का, ये कहते हुए कि आप सोच लीजिए अच्छे से, कुछ मेरी कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल होती हैं तो मैं आती हूँ, और नहीं होती तो मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं लौटूंगी। और 3 महीने के बीच में मैंने बहुत सारी बाहर चीजें सुनी, बहुत सारी चीजें हुई, जिसने कि मुझे ये डिसाइड करने पे मजबूर किया कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी बेटर थी। हाँ हाँ हाँ, चाहती तो मैं, मुझे निकाला नहीं गया था, मैं खुलेआम बोल एट रही द हूँ। एंड जैसा मैनेजमेंट हाँ, में जो जैसा आपने बताया कि हाँ, मुझे मैनेजमेंट अपनी हैज डिग्री रिफ्यूज से, टू हाँ, गिव द एक्सपीरियंस लेटर एक जो मायने रखता है, सो हाँ, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हाँ, वो दे नहीं पाए, क्या हुआ मैम, वो क्या वाकया था? देखो हुआ क्या कि देखो, जब मेरा मेरा नाम नहीं गया और फिर भी आपने मुझे इतना कैपेबल समझा कि आपने मुझे वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे, चेयरपर्सन की जगह पे बीच में आपने अपना डाला हुआ है मुझे, तो अब मेरे लिए डिग्री या डिग्री होना ना होना क्या, वो तो एक तरह से मैं आपके स्कूल के अंदर कितने सारे डिसीजंस लेने के लिए राइट हूँ, वैलिड हूँ। तो फिर मैंने उसमें, जबकि मैंने वहां पे बीएड कर भी ली है, आपके पास रहते रहते आपको पता चल गया मैंने कर ली है, तो पेपर जमा कराना का तो कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता। आपको पता है मैंने पढ़ाया है, इतने साल आपके स्कूल को दिए हैं, और मैंने जो है कर ली है, इसमें कोई कोई दोराहा ही नहीं है, कर ली है, आपको पता है मैंने कर ली है। फिर आपको मतलब पेपर पहले जमा कराना था, तो फिर आपने 20 साल पहले मुझे निकाल देना था कि आपने पेपर नहीं जमा, आपने 20 साल यूज करा, उसके बाद आपने एंड में बोला कि आपने मैम पेपर कोई जमा कराया था। तो कुछ ना बड़ा आप सुन के ही आपको अजीब ही लगेगा कि इस बंदी की पास तो बीएड की डिग्री थी, फिर भी कहा कि पेपर नहीं है। तो आप मुझे बोलो ना, दिखा दो, मैं पेपर लो, मैं दिखाती हूँ, ये लो पेपर, अब दे दो, उसमें क्या लॉजिक है? मतलब मैंने 20 इयर्स दिए हैं और डेडिकेटेड काम किया आपके साथ, आपके टीचर्स को ट्रेंड भी किया, खाली प्रिंसिपल को टीचर्स दिए जाते हैं, वो टीचर्स को ट्रेंड नहीं करती। मैंने टीचर्स को भी ट्रेन किया, पेरेंट्स को भी काउंसिल किया, बच्चों को के लेवल्स इतने ऊपर किए कि जिन स्कूलों के गेट पर बच्चों की उस एरिया में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, पेरेंट्स से वहां पे एडमिशन कराए। आज वो पेरेंट्स इतना इज्जत करते हैं, और टीचर्स जो जो कुछ ढंग के थे, उन्होंने जो बन गए, वो मेरे साथ काम करके, लोग वहां पे आके कहते थे हम सिर्फ स्कूल से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि मैम के अंडर काम करके कुछ सीखना चाहते हैं। और जिन लोगों ने मेरे साथ दगा किया, और भी एक दो नाम है उसके अंदर लोग, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को मुझसे ही पढ़वा के, तराश के आगे उठाया। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि इतने वैल्यूज भी अगर आपने अपने बच्चों को अपने खुद में नहीं डाले, कि सारे स्टाफ के बच्चे वहां पढ़ते थे, अगर स्टाफ ने कल को मालिक को जाके मेरी बुराइयां की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुराई करो, लेकिन आपने क्या फैलाया समाज में, अपने बच्चों को क्या सिखाया? कि उनकी तो मैं प्रिंसिपल ही थी ना, इनकी चलो वर्किंग लेवल पर थी, बच्चों, उनके बच्चों की तो मैं गुरु थी। आप सबने अपने बच्चों को क्या सिखाया, क्या सिखाया, कितनी गलत चीज आपने सिखाई। Moving to the next question. At the age of 62, you decided age won't be a barrier. So how did this mindset transformation happen? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोग 60s आते आते दे गेट इनटू ए मोड ऑफ हाइबरनेशन, बोल लीजिए, यार ठीक है यार अब जी लिया। बट यस, जैसा आपकी लाइफस्टाइल जब मैं बोल दूं, आपकी जो इतनी जर्नी है वो बोल दूं, इट इज एज इज जस्ट अ नंबर। सो मैम ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया, और यू हैव not only done pursued, also you are inspiring people for multiple diplomas courses, और आपने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की है, आयुर्वेदा में किया हुआ है, सो इतने सारे मल्टीपल कोर्सेज, एजुकेशन विद्या की जब मैं बात करूं, वो आपने लिया। मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, डिटेल तो यही है कि इंस्पिरेशन, आज मैं फिर हाथ जोड़ के उन स्कूल के ओनर हो, चाहे वो जो भी लोग आसपास मेरे, सब मेरे लिए स्टोन्स गैदर करके थ्रो कर रहे थे, चाहे स्टाफ था, चाहे वहां की कोई भी बंदा था, वो जो उन्होंने मेरे को किया, उसने ही मुझे, उन्होंने ही, मैं उनका ही शुक्रगुजार करूंगी, क्योंकि वो ही मेरे इंस्पिरेशन थे आगे जाने के लिए। जैसे कि भाई, अब बोला गया कि आपका तो कोई पेपर ही नहीं था यहाँ पर, तो हम तो आपको कुछ नहीं देंगे। इस तरह पेपर तो मैं बहुत सारे इकट्ठे करके कर सकती हूँ अब भी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मैं, मेरे पास दिमाग नहीं है या मैं पढ़ नहीं सकती। मेरे को तो आज तक भी दिमाग में ये चीज नहीं आई कि मैं 62 हूँ, तो आराम से पढ़ लूंगी। फिर मैंने डिप्लोमा इन टीचर्स ट्रेनिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर वही बाहर से, यूके से अपना, और मैं डिप्लोमा होल्डर करने के बाद एनसीसी सर्टिफाइड की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने 92% से क्लियर किया है, हम आपको एनसीसी सर्टिफाई करते हैं कि आपका नाम यूनिवर्सिटी यूज करेगी।
ब्रांडिंग के लिए यूज राइट करेंगे हम आपका राइट नाम। गेटिंग द पॉइंट? दैट वाज अ नॉट स्मॉल थिंग फॉर मी। नहीं, उसके बाद मैंने, हाँ, फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली डिप्लोमा इन एजुकेशनल साइकोलॉजी करा, ज्वाइन। ग्रेट ग्रेट। उसको भी मैंने इतने अच्छे न, और मैंने पिछले 4 साल से पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ मुझे पहले अंदाजा लग गया, कुछ मेरे साथ बीत ही गई, तो मुझे खुद ही समझ आ गया। तो वो डिप्लोमा भी मैंने 93% मार्क्स से कवर किया। ये नहीं कि आप हो गए घिसट पिसट के पास, हाँ हाँ नेवर। With very very flying colors, my family, everyone is proud of me। बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस एज में किताब ही नहीं उठा पाता इंसान, चल नहीं पाता सीधा, और तू पढ़ रही है, वेरी ट्रू। एग्जाम्स, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा, आरोग्यम से न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा का कोर्स किया, जिसमें कि मैंने एलोपैथी का अलग किया, न्यूट्रिशन एंड डाइट, और आयुर्वेदा का अलग किया। मैं मतलब आप ये कहूंगी आपको छोटे शब्दों में कि मैं पिछले 4 साल से सिवाय मेरे बिस्तर पे किताबें खुले रहने के सिवा 3 3 कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करके पूरा घर संभालना, मेरे पास पेट भी है, कैट, उसको संभालना, मेरे हस्बैंड का अपना काम है घर के अंदर, 65 ईयर्स रिटायर्ड पर्सन है, उनको संभालना, मीन्स क्या बताऊं। बट आई एम वेरी हैप्पी, थिंग्स हैव अगेन चेंज फॉर मी इन अ बेटर वे। उसके बाद जी सुनिए, मैंने किया, उसके बाद मैंने वैदिक मैथ्स किया, सर्टिफाइड हूं मैं, एफिलिएटेड हूं किसी भी टाइम इंस्टीट्यूट खोलने के लिए विद एफिलिएशन सर्टिफिकेट। उसके बाद मैंने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ज्वाइन किया। दैट इज वेरी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग इस वक्त विद मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ काउंसलिंग डिप्लोमा के साथ मैंने साइड बाय साइड इन हैंड ज्वाइन किया हुआ है पेरेंटिंग काउंसलिंग। ओके। हाँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Both hand in hand they are going. I have to study whole the day, submit notes all the day. My all the time books are open. I feel so nice कि मैं एक स्टूडेंट बन चुकी हूँ लाइफ में। और एक हायर लेवल की चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कर रही हूँ, मैं सेल्फ ब्रांडिंग का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जिसकी क्लासेस की हफ्ते में 3 बार 8 बजे से रात के 10 तक चलती हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप का कोर्स ज्वाइन किया मैंने, दैट इज इक्वल टू MBA फॉर मी। And whenever I will complete that course, that is for 3 years. After 3 years, I will be completing the course, and राइट उस course के बाद I will be appointed in any of the places as a director, राइट। announcing it very clearly. And not the least, I am writing a book which will be published on December 17th. Oh, great, great, great. Ma'am, you are the live example and you are setting even a level of examples, I will say. कि Many more to go yet, learning, many more to go. And I thank those people who threw stones at me, and I picked every stone and built a very beautiful castle around me, which is having very high walls. They cannot touch me again. great, 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 मैम। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, लर्निंग एंड ग्रोइंग हैज नो एज, इसका जीता जाता एग्जाम्पल है आप। और मैम जी से कनेक्टेड मैं एक शॉर्ट में पूछना चाहूंगा, अगेन एज वी आर गोइंग एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, जैसे हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं और कुछ सवाल है। सो आप ओवरऑल जब मैं बोलूं, एज ए बर्ड आई व्यू, जब मैं बोलूं होलिस्टिकली बोलूं, सो हाउ डू यू व्यू योर ट्रांसफॉर्मेशन from a sparrow to a falcon in your personal and professional life? Girl, when I got married, तो उसके बाद से अब तो I can fly so high, and I am always thankful to God. Gratitude is my first step in the morning. Every day I do gratitude. I do yoga. I do meditation. I do all affirmations, and I bless those people also who have done wrong to me, because मेरे लिए तो वो अच्छे ही थे, मेरे लिए तो अच्छा ही किया उन्होंने। ऐसा ही I will take good part out of it. तो सफर यही था। आई हैव सीन पीपल इन लाइफ कि कहना चाहूंगी कि जैसे हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हम एक तार देखते हैं, रस्सी देखते हैं, बिजली की तार है या कोई तार है। आई यूज टू सी नंबर ऑफ क्रोस सिटिंग, दिस झुंड में बैठते हैं इतने सारे, एंड व्हाट दे डू, दे शिट फ्रॉम वैसे एंड मुंह से कांका। आर दे डूइंग समथिंग गुड? इज समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग? And then I see on the top of the wire a falcon flying high in the deep, alone, independent, and hunting for something very अपनी मर्जी का, and not adjusting with anything, and ready to take all the pains. So it ever inspired me always. और वो प्रैक्टिकली जो इंस्पिरेशन थी वो मैंने लाइफ में भी देखी। ऐसे माहौल देखे जहाँ बैठ के कोई प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ ओनली sitting on the wire and doing all that, and I was still there high flying, and today also I fly, and it's not कि I'm proud of myself, it ऐसा नहीं कि मुझे घमंड है, ऐसा कुछ नहीं है।
आगे भी अभी भी मैं तत्पर हूँ उन्हीं लोगों के लिए। अगर वही लोग पलट के आके फिर मुझे कहते हैं कि मैम हमें एक बार फिर उठाइए या हम आपके साथ हैं, तो आई एम then also I'm there. I'm that humble also. But I respected dignity. My self-respect was above all at that point for me. मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते आपसे। एक दो सवाल हैं, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा एंड यस इट इज अ बिग वन। हाउ डू यू बैलेंस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज while pursuing continuous learning and new beginning? एंड इसी से जुड़ा आप अपने जीवन का इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, यस इसमें क्रेडिट आपके फैमिली का है, सर का है, बच्चे का है, सो वो आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, किन किन चीजों के लिए? मैम इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ डू यू आर मैनेजिंग और वो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। पहले 20 साल जिंदगी के मैं अपने फादर को देना चाहूंगी। उन्होंने थोड़ा हटकर सोचा, लेकिन उसके साथ साथ रूटनेस भी दिखाई, रूटनेस दिखाई, है ना, पनिश भी किया कि भाई, तो वो थोड़ा पिंचिंग भी है और उधर से थोड़ा क्रेडिट तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि उनके उस फैसले के बिना तो मैं आज कुछ भी नहीं। फिर अगला हिस्सा मैं 20 साल का अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आजादी दी, पंख दिए, सारे फ्रीडम दी, जैसे भी अपने एजुकेशन को यूज कर मुझे सुविधाएं बना के दी और सब मेरे को अच्छे से किया। स्कूल सेंटर सब बहुत सारे काम लगता है उसके अंदर, बहुत सारा वक्त लगता है, सब कोऑपरेट किया मेरे साथ और हमने अच्छे से ग्रो किया। और थर्ड पार्ट मैं दूंगी अपने स्कूल के जो ओनर है उनको, जिन्होंने 20 साल मुझे स्कूल 20 भी नहीं तो चलो 17-18 साल तो 20 भी कह सकती हूँ, ब्लाइंडली मेरे हवाले किया और मैंने भी स्कूल का कोई नुकसान नहीं किया, गुडविल बनाई, सब कुछ अच्छा किया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आगे की पारी, जैसा आपने बताया यू आर डूइंग अनदर कोर्सेस आप कर रहे हैं, आपने से बताया पेरेंट्स के साइकोलॉजी और वो भी आप पार्ट करें। सो लुकिंग अहेड, व्हाट आर योर गोल्स एंड विजन फॉर द फ्यूचर? और मैं फ्यूचर इसमें सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं, बिकॉज यू आर द पर्सन हु आर नर्चरिंग, हु आर हेल्पिंग टू क्रिएट अदर्स फ्यूचर्स। सो क्या है वो आपके गोल्स और विजन के भी जो विजन और गोल है, जो आपका जो नियर फ्यूचर जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और आप हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं लोगों का फ्यूचर बनाने में। सो मैम क्या है वो आपके गोल्स, मैम प्लीज बताइए। मेरे गोल्स तो भी बहुत आगे हैं, बिकॉज जो स्टडी मैंने ज्वाइन कर ली है और जो मैंने बुक राइटिंग का एक उठा लिया है, उसमें मेरी फर्स्ट बुक जो है उसका नाम ही मैंने रखा है टीचिंग गेव मी विंग्स टू फ्लाई। टाइटल ही ये डाला, आई एम डिक्लेयरिंग द टाइटल आल्सो, टीचिंग गेव मी विंग्स टू फ्लाई। वो जो बचपन से मैं टीचिंग में घुसी, उसने मुझे बहुत उड़ान दी है और उसी उड़ान भी दी और मैं उड़े भी उसी अच्छे से। और आगे भी जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, अब तो देखो एक सफर शुरू हुआ है। कैसे शुरू हुआ है कि वहां तो मैंने भाई प्रैक्टिस सीख सीख के लोगों को काउंसिल किया, टीचर्स को ट्रेन किया। अब मैं सर्टिफाइड वे से जब मैं बोलूंगी तो एक अलग ही लेवल होगा बात का, अलग ही लेवल होगा। विद माई डिग्री फ्लॉन्टिंग, जो कहते हैं पेपर नहीं है, डिग्री आपकी डिग्री नहीं है, तो वो सब मैं डिग्री जब अपनी फ्लॉन्ट करके जब किसी चीज नॉलेज को इम्पार्ट करूंगी तो उसकी वैल्यू एक डिफरेंट लेवल की होगी, बहुत ही डिफरेंट लेवल की होगी। वो तो मानने की बात है ही है ना, क्योंकि ये मुझे दुनिया ने सिखाया है ना। तो बस अब यही है कहने के लिए। बाकी कुछ कहते हैं ना, जिंदगी जब चलती है तो कुछ टेक अवेज होते हैं लोगों के लिए। अगर आप कहें तो मैं ये इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। पेरेंट्स के, यस मैम, मैं एक बात बताना चाहूंगा जस्ट टू गेटिंग इनटू द एंड ऑफ द मैसेज। आज हम बात कर रहे थे इंदु मैम से, जो कि जैसा मैम ने उनकी जर्नी बताई और जैसा आप लोग सब जानते हैं, शी इज एन रियली इंस्पायरिंग पर्सन, जो कि आपके एक एग्जाम्पल है। मैं बोलूं कि क्या क्या सेटबैक्स हुए और मैम ने कैसे ओवरकम किया, हाउ लाइव एग्जाम्पल है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे करनी चाहिए, सेल्फ बिलीव कैसे करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, सेटबैक या डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये मैं बोलूं। बट हाँ, वो अपनी जो भी चीजें हैं उसके साथ एम्ब्रेस करना, हर नई बिगिनिंग को के लिए तत्पर रहना। एंड जैसा मैडम का एक एग्जाम्पल है, मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं, यस कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो एंड कोई भी एज हो, इट इज ये चीजें लिमिट नहीं करती और ये लिमिट करनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैडम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं एंड ऑफ द पॉडकास्ट में एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आपने बताया कि यू आर ऑल्सो डूइंग, पेरेंट्स के लिए भी आप एक जो है नया जो है कोर्स आप कर रहे हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और जो कि नॉट इवन स्टूडेंट, बच्चों के लिए तो इफेक्ट करेगा ही, बट ए पेरेंट को हेल्प करेगा, गाइड करेगा। पेरेंट्स के लिए करती हूँ बिकॉज इट दे आल्सो नीड वेरी मच ऑफ काउंसलिंग। वो भी राइट मेरा एक सर्टिफाइड, मेरे पास उसकी भी डिग्री होगी बकायदा, ऐसे राइट नहीं राइट। कि कुछ भी तो मैं मैम बैठ वो के बोल। क्या एक मैसेज होगा जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे, जो इस योगीराम के व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? देखिए, टीचर्स के लिए तो ये कहूंगी कि जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं, जो टीचिंग करने आते हैं सिर्फ, वो सिर्फ अपना फोकस टीचिंग पे रखें, क्योंकि उन्हें नहीं बताया जाता, उन्हें बहुत कुछ नहीं पता होता जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो रहा होता है, और उसमें पढ़कर वो अपनी डिग्निटी लूज करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चल रहा होता है वो तो चलता रहने देना चाहिए। वो पढ़ाने आते हैं, उनको उन्हीं चीजों तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि राइट फिर वो एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। राइट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आई है, आप सिर्फ तुक्के पे बोल रहे हैं, फलाना कह रहा है, ढकड़ा कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, आप उसको सर्टिफाई कीजिए, उस बंदे के सामने उस बात को क्लियर कराइए। कोई कुछ भी कह रहा है तो आप मतलब मैनेजमेंट के लायक नहीं, आप कुछ भी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जज भी अगर कोई चोर की चोरी साबित हो जाती है, फिर भी चोर को बुला के बोला जाता है तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो उसकी भी सुनी जाती है। तो हम्म। बिना उस बंदे को बताए कि हमने कुछ सुना, ना उस बंदे का नाम बताया जाए, हवा में तीर छोड़े जाएं, तो ये आई डोंट थिंक दिस इज ए गुड वे ऑफ कंट्रोलिंग दी थिंग्स एंड बीइंग इनटू दिस लेवल कि भाई हमारा अपना वो है तो हम ऐसे हवा में बात करें। प्रैक्टिकली प्रूव कीजिए, आप बोलिए। और फिर पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज जिस भी स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, आप कनेक्टेड रहिए अपने बच्चों से, टीचर पे, प्रिंसिपल पे फेथ रखिए। तो ये चीजें तीनों के लिए हैं। ठीक और ठीक ठीक। प्रिंसिपल्स के लिए है कि always make a space, don't intermingle too much, that will harm you, in fact be aware, be very humble but be aware। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैं एक बार योगीराम के सारे व्यूवर के तरफ से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अपकमिंग बुक। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हाँ, आपकी अपकमिंग बुक के साथ भी हमें और टाइम दें और हम आगे कनेक्ट हो और उस पर भगवान बात ने करें, चाहा, उससे क्या क्या टेक ईश्वर अवे ने मिल चाहा, सकते हैं। तो मैं अपनी बुक को यहाँ पे जरूर आपके ही पॉडकास्ट पे लेकर आऊंगी, एंड आई विल टेल समथिंग अबाउट द बुक, बिकॉज मेरी वो जिंदगी की कह लो कि 19 साल की लेकर के 62 ईयर्स तक की जो मैंने टीचिंग से सीखा, क्या मैं लोगों को दे सकती हूँ, क्या वो उसमें से ले सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या चीजें एक बच्चे को टीचर बनाती हैं। अच्छा, मैं देखो प्रिंसिपल रह चुकी, अपने स्कूल की चेयरपर्सन रह चुकी, उसके बावजूद भी मैं आज भी अपने आप को एज ए टीचर ही बोलती हूँ, शब्द ग्रेट ग्रेट टीचर ही बोलती हूँ, बिकॉज मैं ग्रेट हूँ तो एक टीचर ही पहले, ग्रेट मैम, है ग्रेट ना। मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक्स, थैंक यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ योगीराम टीम एंड योगीराम के सारे व्यूवर्स की तरफ से। बहुत अच्छा लगा और मैम अगर आपसे बात करके मैम। थैंक कोई यू वेरी गलती मच। सुनती हो उसके लिए माफी। नहीं मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। इट वाज प्लेजर टू हैव यू मैम। थैंक यू।